Okay, so I think I'm audible to all of you. And how are you? And hopefully you all are doing well. So in this video, I'm going to talk about CDS 2024 and NDA 2024. We know that these examinations, these two examinations are very important for those who are aspiring to become officer in armed forces. And if you see these examinations, UPSC made huge changes. If I talk about CDS 1 2024, if I talk about NDA 1 2024, in both of these पेपर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. बट आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट the science here, okay, which I teach. Okay, later on discuss about these things now. But the main point that I'm here, why I'm making this video, just to tell you that what I give to my students in terms of the material, how the questions come in the CDX and ND examination, and how my notes, my class tests, and whatever we discuss in our classrooms, how it is helpful for all of you. Okay, so let us, these are some screenshots from recent papers CDS 2024. If you have gave this examination, or if you haven't gave this examination, just I would suggest must go through this paper and एक बार ज़रूर देखो कि यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो टू गिव एनी ऑफ दिस CDS NDA attempt. Okay, because UPSC is changing the pattern. Cutoff, definitely there will be changes in cutoff also, because paper, it is not, we can say it is more of a easier side, but it is doable for those which who ultimately know that what to do and how to calm your nerves in the examination also. Let's begin with this. Okay, later on we'll discuss all of other things also. Just these questions and these screenshots are from my notes, from my test series. We can you can see all of these things, whether it is CDS, NDA. We'll discuss some questions, and I must tell you, I must give you insight that how these notes are helpful. Will you go directly, is it good to directly open the NCERTs and you start reading the chapters from there, and you find and you feel that you are able to do? No, see, NCERTs are good, I must say, but how to read those NCERTs, you must know that thing. And from my side, what I can do, I can make those NCERTs simple for you. Okay, I do the work from you, from your side, to read those NCERT, and तुम्हारे लिए काम मैं आसान करूँगा. ठीक है, now let's see these questions. फिर उसके बाद we'll discuss a lot of things. मुझे बहुत कुछ चीज़ें इसमें बतानी है तुम्हें, ठीक है, कैसे अप्रोच रखना है एग्जाम में, कैसे UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें मेरे को इसमें बतानी है. Okay, so let's see which one of the following is not a micronutrient. See, these are the नोट्स में से सीधा माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता, और ये वो न्यूट्रिएंट्स मेंशन हैं, ठीक है, जो NCERT में मेंशन है. क्लास 9th लास्ट चैप्टर आप देखोगे ना, दैट इन दैट चैप्टर इन्वायरमेंट का चैप्टर है कुछ, वो उसके अंदर मेंशन है ये न्यूट्रिएंट्स माइक्रो एंड मैक्रो. यू कैन क्लियरली एलिमिनेट, ये नोट्स का पार्ट है. NCERTs की मैंने, आप ये समझो कि मेरे नोट्स इस तरीके से हैं, those notes are in summary of NCERT. Means if you are reading those notes, that means you are reading a summary of NCERT, and summary doesn't mean we compromise with anything. I picked up those lines to summarize for you, because if you open NCERTs ना, NCERTs में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ना भी है, जो आपको छोड़ना भी है. क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, that only can tell you जिसने उसको डीप में पढ़ा होगा. ठीक है, that's why I'm talking about science only, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ. ठीक है, now in which of the following colloids is a dispersing medium? See, this is, ये आपका मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला हुआ है, एंड ये आप क्वेश्चन पढ़ लो स्टेटमेंट 2. अब जिसने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जिसने क्वेश्चन मेरे से समझा होगा, तो अल्टीमेटली उसका तो गलत नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि उसे ये तो पता है फॉर्म जो है वो गैस एंड लिक्विड होता है, और वही पूछा है डिस्पर्सिंग मीडियम. दो होते हैं कोलॉइड में, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बैच में. ठीक है, चैप्टर जब हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें डिस्कस होती है. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी मैं यहाँ पे करूँगा क्वेश्चंस का, कि कहाँ से पूछ रहा है UPSC क्वेश्चन, कैसे पूछ रहा है, आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट की. नॉट अबाउट साइंस, ये तो मैं CDS 2 2024 का बता रहा हूँ. CDS 1 2024 में भी मेरे क्वेश्चन आए, ऑल्दो साइंस उसमें बहुत कम कर दी थी. ठीक है, 12-13 क्वेश्चन होंगे इनके ऐसे जो डुएबल होंगे, बट उसमें ही मैं बताऊंगा वही लोग अच्छा कर पाए हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप समझ लो कि साइंस तो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए डिफिकल्टी रही है CDS 1 2024 के लिए. बट अभी क्या हुआ है, अभी CDS 2 2024 में साइंस उन्होंने ईजी दी, और
इफ़ यू आस्क माय स्टूडेंट्स, मैंने भी उनको यही सेम चीज़ें बोली हैं कि साइंस अगर 1 में CDS 124 में अगर उन्होंने डिफिकल्ट डाली है, 2 में आपको इजी मिलेगी। वी आर होपिंग दैट यूपीएससी अपने एनसीईआरटी वाले उस पर आएगा, और वही हुआ। देखो वही सेम चीज़ है। आप 16 क्वेश्चन पढ़ना जरा। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, देखो यहाँ नोट्स में, ये एक चैप्टर का लाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद हीलियम इज कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी इलेक्ट्रिक बल्ब वाला कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन और आर्गन यूज होती है। ये ऑप्शन एक्चुअली नॉट करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, ऑक्सीजन यूज टू बर्न रॉकेट इन फ्यूल, ऑब्वियसली बात है, कोई भी बर्निंग चीज है। अगेन कॉमन सेंस, हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लगती है, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग हो नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज यूज्ड गैसेस फॉर्म और रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग, ये भी देख लो, ये भी अलग चैप्टर का है। ये तीनों अलग चैप्टर की लाइनें हैं, यूपीएससी ने मर्ज करके दे दी। अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू। जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आपको ये नोट्स नहीं पता है ना, अगर आपको ये रिवाइज नहीं है अच्छे से, जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी की लाइंस आप क्लियरली देख सकते हो, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये नोट्स मैं क्लास में बनाता हूँ, मैं इसी फॉर्मेट में बनवाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी का बुक है उसमें अलग लैंग्वेज लिखे। देखो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूपीएससी को एनसीईआरटी की लैंग्वेज पसंद है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 आइसोटोप्स एंड एलिमेंटल क्लोरीन। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, यूपीएससी भी गलती करता है। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो? C फॉर कार्बन होता है, वो तो चलो दे डोंट कंसिडर इट C फॉर क्लोरीन, C फॉर, अल्टीमेटली कायदे से जो है उनको इस तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से 35 ऐसे होना चाहिए था, बट चलो नेवर माइंड, यूपीएससी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, ठीक है, बट नेवर माइंड, क्वेश्चन करेक्ट है। ये कैसे, कहाँ से आया? ये देखो, वही आइसोटोप वाले से दोबारा पूछा, एक ही चैप्टर से दो तरह के सवाल पूछे गए। ये भी अल्टीमेटली आपको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, मैं साफ बता दूं, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लो, ठीक है। अब एक और चीज देखो, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। मैंने भी मैच द फॉलोइंग एक दिया था एक टेस्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, देन ब्लीचिंग पाउडर, बाकी जिप्सम और लाइम वाटर। अब ये सब चीज़ें, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा कि सर ये तो नहीं है इसमें, अरे भैया नोट्स में है ये सारी चीज़ें, इसके भी क्वेश्चन कराए। जब इतना कुछ डिटेल पढ़ा है, जब क्वेश्चन मैच करता है, जब बाकी यूट्यूब में हल्ला मचता है ना कि हमारे से क्वेश्चन आया, हमारे उससे क्वेश्चन आया, इसे कहते हैं क्वेश्चन आना लाइन बाय लाइन, ठीक है। मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा तुम्हें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये देख लो, द फेनोमेनन रेनबो तो यूपीएससी को पता नहीं क्यों इतना पसंद आ गया है। पिछली बार एनडीए में डाल दिया था, ठीक है, इस बार सीडीएस में डाल दिया, ठीक है। ये देख लो, क्या पूछा है? रेनबो फॉर्मेशन। अब कौन सा पूछा है सर, प्राइमरी या सेकेंडरी? अरे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ही पूछा होगा यार, सेकेंडरी होता तो मेंशन होता है यहाँ पर सेकेंडरी है, ठीक है। अगेन कॉमन सेंस। फिर क्या पूछा है? इन्वॉल्व क्या होता है इसके अंदर? सिंगल रिफ्रैक्शन नहीं, 2 रिफ्रैक्शन होती है, 1 रिफ्लेक्शन होती है। 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ बिल्कुल। 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो, बोथ रिफ्रैक्शन है इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें भी ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सर कौन सा करना चाहिए? भाई रिफ्रैक्शन भी होती है, इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये बेटर ऑप्शन है। अगेन इसमें कंपटीशन पता है क्या था? ये तो एलिमिनेट हो गए, चलो ये तो समझ में आता है। अब इन दोनों में क्या चूज करना है? इन दोनों में तो वही चूज करोगे ना जो बेटर है। 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, होता है, पर क्या रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो भी तो होता है। अगर यहाँ लिखा होता ना वन रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब ये गलत बन जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगेन लॉजिक थोड़ा सा और कुछ नहीं है बैच में। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ बात होती है, जब आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, पढ़ना इज अ वन थिंग, सिलेबस कंप्लीशन इज अ वन थिंग। आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे एक टाइम पे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, कुछ एबिलिटी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, वो चीज़ मेन है उसके अंदर, ठीक है। बिकॉज आप ये समझो, आपका कंपटीशन नए वालों के साथ तो है ही है, आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जो 6-8 महीने, 1-1, 1.5 साल से पेपर दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक निकाल रहे हैं, उनके साथ भी है। उनकी रीजनिंग एबिलिटी आपसे ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी पेपर को क्लियर करने के मामले में, तो आपको भी उस लेवल तक पहुंचना है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ द प्लांट? और क्या चाहिए भाई, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है, डायरेक्ट इसे बोलते हैं, और ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। ये नहीं कि अपनी ऐप या वेबसाइट पे या ग्रुप में भेज दिए 50 टेस्ट और बोला कि 50 टेस्ट करवा दिए। ऐसे टेस्ट करवाओ जो जेन्युइनली रेलेवेंट हो, तो वो चीज़ मैं उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है, कि ऐसे टेस्ट होंगे जो जेन्युइनली आपको हेल्प करेंगे। अभी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम?
लो ये देख लो ऑर्डर वाला एक दिया हुआ है। अब सोचो जब बच्चा इस लेवल पे टेस्ट दे रहा है ना, टेस्ट सीरीज जब इस लेवल की टेस्ट सीरीज है तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और देख चेक करते रहो। विच ऑफ द ऑर्गेनिक एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। अब लाइन देखना, कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, लाइसोसोम्स दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। और क्या चाहिए भाई, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना। ठीक है, नेक्स्ट लो प्रेसबायोपिया क्वेश्चन, प्रेसबायोपिया लो सीधा सीधा क्वेश्चन। ओल्ड एज में आता है, सिलेरी मसल वीक होती है, ऐसा नहीं है कलर में अलग होता है, वो कलर नहीं होता उसके अंदर। ओल्ड एज में आता है, बिल्कुल सही है। बायफोकल लेंस लगता है, बिल्कुल सही है। सो 2 and 3 ऑप्शन डी। फिर उसके बाद नॉट स्टोर्ड इन, लो एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम लिथियम, कौन बचा? सोडियम पोटेशियम लिथियम, कौन बचा? रूबिडियम। दिस इज द करेक्ट आंसर। सीधा इसे कहते हैं डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आना। ब्लीचिंग, अब और भी हैं ये, अब ये बेसिक चीज है। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी किससे पता लगती है? केमिकल प्रॉपर्टी पता लगती है एटॉमिक नंबर से। अब ये चिल्ला चिल्ला के मैं क्लास में बता चुका हूं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, काम खत्म। ये है क्वेश्चन, ये यूपीएससी पूछता है। और ये चीजें आप ये समझो कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्ले करती है रोल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल। अब कैम्बियम हमें पता है, कैम्बियम तो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जहां से आपके फूड मिनरल्स वाटर मिनरल्स जा रहे हैं। तो कैम्बियम में से कुछ नहीं जा रहा, तो ये है पार्ट, काम खत्म। ये सारी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तब आप उसको कर पाओगे। ये इवेपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम इन प्लांट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, लो जाइलम के ऊपर क्वेश्चन। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहाँ स्टोर होता है सब। क्लोरोफिल कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस जिससे होती है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये बेसिक से क्वेश्चन। स्टार्च, स्टार्च कितनी, जब भी मैं बोलता हूँ स्टार्च, ग्लूकोज, ये आपका स्टार्च, ग्लूकोज और आपका कार्बोहाइड्रेट्स सिमिलर तरह का कंपाउंड क्रिएट कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। केमिकल प्रॉपर्टी चलो दोबारा हो गया। नाउ NDA2 का देखो, दिस इज NDA2 2024। ठीक है, अल्टीमेटली देखो लो शेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? डायरेक्ट सारे करें हमने, लो कौन सा पूछेगा? 5वां पूछ लेगा, आप n2 स्क्वायर को 5 डाल दोगे, n को 5 डाल के निकाल लोगे, कोई पूछ लेगा। जब इतने कर लिए तो आगे तो कर ही लोगे। और ये एनसीईआरटी में, इतने एनसीईआरटी में मेंशन है, उतना ही। लो डेंसिटी के ऊपर हर बार क्वेश्चन हम इसको डिटेल में करते हैं। लो एनसीईआरटी में इतनी, अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये आपका PYQ है। ठीक है, ये आपका PYQ है। PYQ को रिपीट करके दिया हुआ है। इसका आंसर होगा आपका 277, 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 273 प्लस 4 डिग्री, अब केल्विन टू सेल्सियस जब करो तो 277 आएगा। वहां से दिया है क्वेश्चन ये वाला। और हमने सारा पढ़ा है कि देखो 0 से 4 में क्या होता है, 4 के बाद क्या होता है। कुछ भी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपको बताओ? ये लो, इस लेवल पे नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगेन अब चलो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आया एल्यूमिनियम वाला, और देखो एल्यूमिनियम वाला मैंने भी दिया इनको क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं, अभी समझना, दिस इज नॉट अ मैजिकल, नॉट अ मिरेकल हियर, बट थिंक इट इज ऑल अबाउट स्टडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स थॉरोली। डिटेल में मैंने स्टडी किया, और एक नहीं 2 बार मैंने सेम क्वेश्चन दिया। ये मैंने आयरन के लिए दिया था, वो पिक्चर यहाँ पे कट गई है, वो पूरा नहीं है। ये मैंने आयरन के लिए दिया 56 और 26, और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ जैसे यहाँ पूछा हुआ है। अब ये कहाँ से है? ये मैंने कहाँ से दिए? सोचो मैंने कहाँ से दिए? मैंने प्रीवियस ईयर पेपर छाना है पूरा 10 साल का, 10 साल 15 साल के पेपर सब देखे हैं मैंने, तो मुझे पता है वो किस लेवल तक का पूछ सकता है, तो वो डाला है मैंने। यहाँ करेक्ट पूछा, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू पूछा, इन्होंने नॉट करेक्ट पूछ लिया। अब जब बच्चे ने ये वाले टेस्ट लगा लिए मेरे, तो उसके बाद उसको ये नहीं समझ में आएगा। आप ये सोचो, ये चीज को समझो। ठीक है, मैं ये रियलाइज करना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लीटिंग सिलेबस। कोई बुक पकड़ ली, कोई मार्केट से बुक खरीद ली, वहां से कर लिया, साइंस नहीं हो जाएगी, नहीं। अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको करना पड़ेगा। क्या यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है? हाँ करता है, ये देख लो। मैंने कहां से दिए क्वेश्चन? मैंने भी प्रीवियस ईयर पढ़े भैया। क्या आप बात आती है टाइम की, क्या आप उतना टाइम निकालो कि सारे प्रीवियस ईयर छानने से बैठो? नहीं, वो काम मैं कर रहा हूं आपके लिए। आपका क्या काम है? आके बैठ के पढ़ना बस। सारी मेहनत हमारी रहेगी, हाफ मेहनत आपकी रहेगी, हाफ काम आपका रहेगा उन्हीं चीजों को करना जो आपको गाइड किया जा रहा है, सिंपल। और वो क्यों हेल्पफुल है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड। अरे यार डायमंड, ये तो फिर भी बहुत आसान पूछ लिया। डायमंड क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। कार्बन में क्या होता है? कार्बन और आपका कार्बन और हाइड्रोजन होगा, यही दो चीजें हैं।
ओके, समझे? तो अल्टीमेटली दिस इज द बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अब ये देख लो, फर्टिलाइजर्स इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा? यूरिया, ठीक है। कौन सा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन का सोर्स है? ये तो बेसिक सी चीज़ें पूछी हुई हैं। ऑक्सीडेशन इनमें से कौन सी है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन। यार हम ये भी रिएक्शन है जिसमें हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन करा हुआ है। क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं है? बिल्कुल है। ऊपर देख लो, वैलेंसी किसकी? 3 वैलेंसी है। अब इसके अंदर आई विल शो यू वन थिंग, सी, ये देखो, पूरा एटॉमिक टेबल हम लिखते हैं, ये मैंने लिखवाया बकायदा फुल वैलेंसीज के साथ। कैसे कोई गलत कर लेगा बता दो? कोई भी पूछ ले, यहाँ पूछ लिया नाइट्राइड का, यहाँ पूछ लिया कार्बन का, ये अपना ये दोबारा 3 पूछ लिया, यानी नाइट्रोजन का। आई थिंक इट इज, लो नाइट्रोजन का पूछ लिया, और दोनों बार नाइट्रोजन नाइट्राइड, लो एक ही उसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है? कहानी ये है कि आसान से आसान, बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपको इस नोट से मिलेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अल्टीमेटली की इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट देखो, केमिकल चेंज क्या है इसमें से? अरे केमिकल चेंज भाई, मिक्सिंग, NaOH और HCl को मिलाओगे, बेस बनेगा, बेस और एसिड है, सॉल्ट बनेगा, केमिकल रिएक्शन है। ये डिफरेंस टेबल हमने बना रखा है, इसके अंदर बात की है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। इसके अंदर एक पॉइंट लिखा है कि इट इज़ इरिवर्सिबल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो 1 to 1। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए प्रैक्टिस में तुम्हें, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें फोकल लेंथ दी है और तुम्हें फोकल कंबाइंड फोकल निकालनी है। यहाँ तुम्हें पावर दे दी और कंबाइंड पावर निकालनी है। कंबाइंड पावर लो, ये तो और आसान दे दिया। बस इतना करना था इसके अंदर, सिर्फ इतना सा खेल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 120 वही 122 जो ये क्वेश्चन है, इसका मैं तुम्हें थोड़ी कहानी बताता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है? एनसीईआरटी में मेंशन है कि एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज, इतना मेंशन है बस। तो सर ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया? ये तो हमें कभी देखा ही नहीं। अरे तो यही, इसी चीज़ के लिए तो एजुकेटर्स होते हैं, इसी चीज़ के लिए तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ के लिए तो हम बताते हैं। अगर 50 हर्ट्ज अगर एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं क्या बताऊंगा? अरे फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यानी t इज इक्वल्स टू 1/v, यानी कि फ्रीक्वेंसी। चलो f लिख देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। f, तो t इज इक्वल्स टू 1/50, कितना आएगा? टाइम पीरियड आएगा 0.02। बोला सर 0.02 आया, ये तो ऑप्शन में तो मैचिंग कर रहा है। ये क्या चीज़ है? अब समझना जरा। यहाँ पे देखो ये बच्चे ने क्यों लिखा हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये देख लो, ये मेरा बनाया। व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ f in India in which it changes its direction? लो जी, ये मेरा नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन है कि यूपीएससी किस हद तक मैक्सिमम पूछ लेगा, और वो देख लो इस हद तक पूछ लेगा, और वो हुआ भी है प्रूफ। दिस इज द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ माई थिंग जो मैं आपको बैच में कराता हूँ, ठीक है। तो ये चीज, अब देखो ये क्या, ये टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड है कंप्लीट साइकिल का, मतलब करंट यहां से गया और वापस आ गया, तो इसको टाइम लगा 0.02। तो पर कितने टाइम में इसने डायरेक्शन चेंज करी? इसने हर 0.01 सेकंड, यानी 1/100 सेकंड में डायरेक्शन चेंज करी। ऑप्शन डी, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मायोपिया लो। मायोपिया में अगर मैं इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है उनको यार। मायोपिया में करेक्ट क्या है? मायोपिया नियर साइटेडनेस, पास का देखना। और नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, नोट्स मैंने यहाँ नहीं लगाया, नोट्स में तो हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया विद डायग्राम विद रे डायग्राम सब किया हुआ है। लेकिन मैं क्वेश्चन के लेवल की बात कर रहा हूँ। जब मैं अगर नोट्स में लिखवाऊंगा सिर्फ ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक, और पूछूंगा क्वेश्चन इस लेवल का, तो सोचो तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता, ये लो, ये देखो लिखा हुआ नोट्स, ठीक है। नोट्स भी यहाँ पर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ये देख लो, ये मेरे नोट्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ बच्चों को। ये सिर्फ नोट्स पढ़ के भी जाओगे ना, यूपीएससी अगर बाहर से भी पूछ रहा, बोलोगे सर आपके तो एनसीईआरटी तो कवर है, बाहर से पूछेगा तो, अरे बाहर से पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा भैया, ये चीज़ समझो। वो सबके लिए मुश्किल है, फिर वो तुम अकेले नहीं हो, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। इस चीज़ को समझो। दैट मीन्स अब क्या सर, क्या करें फिर? सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करें? नहीं, सब कुछ पढ़ना बेवकूफ़ी है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी डायरेक्ट खोलने बैठ जाए, नहीं समझ में आने वाली, वो नहीं समझ में आने वाली, मैं बता रहा हूँ। और इतना टाइम लगेगा, अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे अपना, ठीक है। इसीलिए ये सब नोट्स मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में तुम्हें बता देता हूँ, प्रेप विद जय, प्रेप विद जय जो है वो टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पे तुम सारे नोट्स ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो।
देख लो नोट्स, पढ़ लो भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी गाइडेंस चाहिए टेलीग्राम पे आ जाओ, मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। और अल्टीमेटली पढ़ो, ठीक है। दिस इज द टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ पे आ जाओ, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, जब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे कंप्लीट साइंस, ठीक है। और भी नोट्स डाल दूंगा, हिस्ट्री के भी नोट्स डाल दूंगा, पॉलिटी के भी डाल दूंगा, धीरे धीरे सब अपडेट कर दूंगा। पर साइंस का तुम्हारा काम तो हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन AgCl AgBr की करी है, और यहाँ पे देख लो क्या पूछा, ये देख लो यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ग्रे डायग्राम बनवाता हूँ मैं बाकायदा क्लास में, और ये देख लो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक और चीज तो मैं दिखाता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक, नॉन मेटल्स, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, कौन सा आएगा, S8 सल्फर, खत्म कहानी। टेट्रा नहीं लिखोगे, फॉस्फोरस भी दिया, ये भी दिया, क्या लिखोगे, S8 लिखोगे। इसे कहते हैं डीप में स्टडी करना, ठीक है, चीजों को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोम इज नॉट करेक्ट। अब तुम ये लाइन पढ़ना एनसीईआरटी, ये पूरी मेरी बनाई हुई लाइन नहीं है, ना मैंने किसी बुक से छापी है ना कुछ, ये मैंने एनसीईआरटी उठाई है। साफ बोलता हूँ, मैं एनसीईआरटी की लाइन छापता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या छापना है क्या नहीं छापना है वो मुझे पता है। Lysosomes are able to do this because they contain a powerful digestion enzyme capable of breaking down all organic materials. All organic materials, यहाँ देख लो क्या, नॉट करेक्ट, ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक। आप समझो यूपीएससी किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मजाक नहीं है। 1 महीना 2 महीना यूट्यूब में मैराथन वीडियोस देख लेना, ठीक है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, ठीक है। 2 महीने पहले जागना कि अब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप सोचोगे 2 महीने पहले स्टार्ट करूंगा, अभी रहने देता हूँ, ये वो ऐसा वैसा, कोई भी एक्सक्यूज मैं बता देता हूँ, नहीं वर्क करेगा। इस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चेंज करके बस, ठीक है। पर तुम्हें लाइंस यहाँ लिखी हुई मिलेंगी, एक एक वर्ड जो मैं लिखाता हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत प्रिसाइजली, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने सारे स्क्रीनशॉट नहीं लगाए हैं, ये सब नहीं लगाए जेनेटिक मटेरियल, ये हम सबसे पहले पढ़ते ही यही चीज़ें, तो ये बेसिक सी चीज़ें नहीं लगाई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इसका आंसर, ठीक है। ये भी PYQ में बता देता हूँ तुम्हें, यूपीएससी रिपीट कर रहा है आपने क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देख लो, जैसे ये है टेंडन ब्रेक, लिगामेंट ब्रेक, क्वेश्चन देखना। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। 2 लॉन्ग टूट गई, बोन और बोन को कौन जोड़ के रखता है, लिगामेंट जोड़ के रखता है। क्या है, बोन और बोन को कौन जोड़ के, लिगामेंट। अब जब बच्चे ने ये टेस्ट दे दिया ना, इसके लिए कुछ भी नहीं है, हलवा है। बोलेगा भाई क्या है, क्या दे दिया सर ये, हम तो ये इस लेवल पे तैयारी करके जा रहे थे, यूपीएससी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ लोग होंगे, यूपीएससी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर खुजा रहे हैं बैठ के अपना। नाउ नेफ्रॉन, अब देख लो नेफ्रॉन के बाउमन्स कैप्सूल, ये लो बाउमन्स कैप्सूल, ईच नेफ्रॉन कंटेन बाउमन्स कैप्सूल विच हेल्प टू सेपरेट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। फिल्ट्रेशन के लिए क्या है, बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देख लो भाई, हमने ये आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर वो भी किया हुआ है, पर क्या हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, नहीं। वहाँ से मैंने पिक की हैं स्पेशल चीज़ें। लो स्पॉन्जेस किसे बोलते हैं, पॉरीफेरा के अंदर सिर्फ 2-2 3-3 लाइनें हर एक, उसमें इतना भी याद रख पाओगे ना, एग्जाम में एलिमिनेट कर पाओगे तुम। इस चीज़ को समझो, एलिमिनेशन कर पाओगे, और वही चीज़ करनी है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, स्मार्टली पढ़ना होता है। अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाओ, ठीक है। वैसे सीधा अंधाधुन मत बुक खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर चक्कर आ रहे, नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा चीज़ों को, फिर छोड़ देते हो, वो नहीं चाहिए। प्रिसाइज नोट, बिल्कुल कट टू कट, ठीक है। अभी देख लो सेपरेशन मेथड्स, ब्लड टेस्ट, लो ब्लड टेस्ट कर लो भाई, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यहाँ ब्लड टेस्ट की जगह यूरिन भी लिख देता ना, ठीक है, तब भी तुम्हारा सेंट्रिफिकेशन आता, एनसीईआरटी। देन ये भी देख लो, नॉट फाउंड, इट स्मूदन्स द बोन सरफेस एट जॉइंट्स। लो जॉइंट, नॉट फाउंड बोला है, फाउंड होता है तो ये एलिमिनेट। नोज एलिमिनेट, ट्रैकिया एलिमेंट, बचा क्या, ठीक है। अगेन दीज ऑल आर प्रूफ्स ऑफ माई थिंग, ठीक है। अब ये देख लो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया था काइनेटिक एनर्जी का, कि एक कार है जो नहीं, ये वाला नहीं, कार वाला तो चलो हमने किया, ये वाला देखना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। इसको मैं 5 मीटर पे रेज किया, मास इसका 40 kg है। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो आप इसका जब कैलकुलेट करोगे 2000 आएगा। फिर पूछा हाफ वे पे कितना होगा, हाफ वे पे अब देखना, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, वो होगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, अब ऑब्वियसली बात है, जब बॉल को आप रिलीज करोगे
तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में हाफ वे में आकर, यानी 2.5 में आकर। तो क्या वही पोटेंशियल एनर्जी भी 2.5 पे जब आप निकालोगे, मास 40 इंटू 2.5 इंटू हाइट और जी आपका 10, तो यहाँ पे आएगा आपका 1000। तो एनर्जी भी तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी हाफ ऑफ काइनेटिक में। तो मैंने इस तरीके करा। और एक चीज़ और, अब थर्ड पार्ट देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब बॉल जो है ग्राउंड को जस्ट हिट कर रही होगी। जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, उस समय हाइट जो होगी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अब उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगी? क्या उस टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी बॉल में जब वो हाइट 5 मीटर पे था, क्या वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक एनर्जी में? बिल्कुल। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टार्टिंग में थी, दैट मीन 2000, उतनी ही एंड में होगी जस्ट व्हेन बॉल इज अबाउट टू टच। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है 2000। और यूपीएससी ने क्या पूछी है, देखो यहाँ तक तो मैंने कराया क्वेश्चन, ये थर्ड वाला पार्ट तो यहाँ तक था लॉजिक से। 2000 काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी, ठीक है। तो 2000 अगर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से बस ये पूछ लिया कि आप इस काइनेटिक एनर्जी को पता करो और हाफ mv² के अगेन पुट कर दो, ये चीज़ था, ठीक है। अब ये देखो जरा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है इसको। पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, क्या जब वो बॉल जो है, जो भी ऑब्जेक्ट बॉल जो है सरफेस को टच करने वाली होगी, क्या जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसको जितनी भी हाइट पे रिलीज़ किया है फ्रॉम अ हाइट, हमें नहीं पता, उतनी सेम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में? बिल्कुल सही बात है। यानी यही आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। 625 इक्वल टू हाफ m होगा। 625 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 320 अपॉन 1000 इंटू v², ठीक है, 1000। तो ये कटा, राइट, ये कटा 16 पर, यानी कि 625 इंटू 100 या 1000 में, ये आपका केजीज में होगा, ये आपका केजीज में होगा, ठीक है, अपॉन 16 इक्वल टू v²। बस अब तो सब स्क्वायर में आ गया आपके। अब आपका हो जाएगा √625 इंटू 100 अपॉन 16, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 10 अपॉन 4, ये 2, ये 5, ठीक है। तो अब 125/2 यानी 62.5, यस 62.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अल्टीमेटली इसको केजी में चेंज करना था, ठीक है, और ये तो दिया ही हुआ था। पॉइंट क्या है, देखो कंसेप्ट, यहाँ पे यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, और ये डिस्कस्ड है ऑलरेडी चीज़ें, ये क्लास में ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई हैं कि अब इसके बाद क्या ही पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता लग गई, हाफ mv² करके क्या मास और वेलोसिटी का, वही पूछा इसके अंदर। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब एक बॉल को हाइट पे लेके जाते हैं, तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्टर होती है काइनेटिक एनर्जी में जब एक बॉडी वेरी क्लोज टू ग्राउंड होती है या हिट करने वाली होती है। खत्म बात, इतना कंसेप्ट था। उसी को हमने, बस इसी को हमने क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं चीज़ें, ठीक है, क्लासेस इसलिए बताई जाती हैं। नेक्स्ट, बाकी ये रे डायग्राम्स वाला क्वेश्चन हमने किया, रेजिस्टेंस पैरेलल दिए हैं, 2 सीरीज में दिए, उसके बाद थर्ड वाला पैरेलल में दिया, अगेन सीरीज पैरेलल क्वेश्चन, पहले वाले को आप सीरीज में लगाओगे, जो आंसर आएगा उसको कर दोगे, जैसे इसका आंसर आया r' तो 1/r' प्लस 1/r3, इसका पैरेलल में करके जो भी आंसर आएगा यहाँ गिवन होगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन, जो हल्की है, जो ऊपर है, ठीक है, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, डेंसिटी वाटर है कम। ये जो ज़्यादा डीपर है, जो ज़्यादा डीप है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन, ठीक है, अगेन सीरीज पैरेलल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। इसी ही बात करें, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 65, एस्ट्रोनॉट हुज वेट ऑन द अर्थ इज 600 न्यूटन एक्सपीरियंस वेटलेसनेस ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज 0, नो, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द एस्ट्रोनॉट 0, यस, कोई खींचने वाली चीज़ ही नहीं है जो उनको ग्राउंड से स्टिक करके रखे, कोई ऐसा फोर्स ही नहीं है, ठीक है। अगेन वही वेट फ्री फॉल, इनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस भाई, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स, और ये आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन पॉइंट इज, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे ओवर द टाइम, व्हेन यू प्रिपेयर, व्हेन यू आर इन प्रिपरेशन, ठीक है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। ये यूपीएससी एग्जाम 2 महीने का गेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये नहीं, CDS 2022 आपका, CDS 2 2024, NGA 2 2024, सिर्फ इतना नहीं, ठीक है।
CDS 124 साइंस अगर आप देखोगे उसमें भी हमने डिस्पाइट आपका इतना डिफ़िकल्ट पेपर बनने के बाद भी, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका इवेपोरेशन से आया है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस नहीं है, वो रेड ब्लड सेल्स है, ये सब चीज़ें जो हैं हमने ऑलरेडी करी हुई हैं, ठीक है। ये देख लो, सिर्फ सब कुछ नोट्स में पहले भी आया, अभी भी आएगा, हर बार आता रहेगा, ठीक है। पॉइंट इज़ कि आपको पढ़ना कितना है, कब पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन बना, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो अभी से ही, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, जहाँ पे मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड साइंस मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, सो इट इज़ SSB श्योर शॉट एकेडमी, ठीक है, ठीक है। वहीं पे मैं आपको यहाँ पे आपको ऑफलाइन बैच, ठीक है, /ऑनलाइन दोनों की फैसिलिटी है, ठीक है। दोनों हम स्टार्ट, ऑनलाइन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन वी आर रनिंग अर्लियर ऑल्सो। इस टाइम भी 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड 15 अक्टूबर से हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा आई थिंक बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है क्योंकि बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो अपॉलॉजी फॉर दिस वॉइस, बट हाँ, these are things and here I am studying। जो भी लिंक होंगे, जो आपको उनका यूट्यूब का लिंक और आपको उनका इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम भी है, प्रेप विद जय करके, ठीक है, प्रेप विद जय, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। एंड वी हैव अ गुड टीम ऑफ एजुकेटर्स, ठीक है, गुड टीम ऑफ एजुकेटर्स। आप चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियो हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। एंड वी आर एजुकेटर्स ऑल्सो क्लियर दिस CDS एग्जामिनेशन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये 7, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स बैक टू बैक उन्होंने एग्ज़ाम निकाले हैं। मैंने भी खुद टोटल 10 एग्ज़ाम्स, वेदर इट इज़ AFCAT, वेदर इट इज़ CDS, वेदर इट इज़ कोस्ट गार्ड, मैंने भी ये सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। सो अल्टीमेटली वी आर राइट टू गाइड यू। जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को टेलीग्राम पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी सही लगे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ that what you can do, how to do, content videos will be there, but I don't believe this one video complete bio, one video complete chemistry and all। अगर आपको genuinely पढ़ना है, अब if you are really care about your preparation and selection ना, तो उसके लिए अभी से ही तैयारी करो, ठीक है। डोंट वेट फॉर सच अ लॉन्ग थिंग्स कि एक दिन में आपको 4 घंटे लगा के आपने पूरी साइंस ख़त्म कर ली, नहीं, ठीक है। फिर वो उनके लिए अच्छा है, मैं बता देता हूँ, क्या ये वीडियो सब यूजलेस होती है? नहीं, ये उनके लिए अच्छा है यार, जो ऑलरेडी दे आर स्पेंट 1 year or 1.5 year इन देयर प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उनको तो वो एक बस वीडियो रिवीजन के लिए होता है। अपनी SSBs में दे आर गिविंग 2 to 3 SSBs बैक टू बैक इन एवरी सेकेंड मंथ, तो उनके लिए वो ठीक है भाई। लेकिन अगर आप नए हैं, वेरी न्यू हैं, और आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं अभी तक एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, नहीं प्रिपरेशन का पता है कैसे करना है, कैसे करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको डिटेल तरीके से पढ़ना और सही गाइडेंस में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो कोई भी किसी चीज़ का डाउट है, यू कैन टेल मी, यू कैन मेंशन मी, एंड दिस इज़ SSB श्योर शॉट वेयर आई एम टीचिंग, ठीक है। एंड कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर डाउट्स हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैसेज करिए, आई विल बी कनेक्ट विद यू। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ।